Good morning, everyone. Astha Sharma and Sudhanshu Kumar. You are taking time in entry. Astha, Srishti and Sudhanshu. Good morning to all. And we have already discussed about roadways in India. Good morning, beta. Srishti, good morning, beta. We have discussed already roadways, isn't it or not? Roadways have discussed. Yes, ma'am. So today we will start railways, revision of railways. Okay, let us come to all, enter all students. My voice is clear or not? Yes, ma'am. Your voice is clear. वीडियो भी आ रहा है ना बेटा? Yes, ma'am. ओके, टाइम तो 10:50 हो गया है, 4 मिनट पहले हम इसीलिए आते हैं कि सभी को एंट्री दे दें, फिर टाइमली क्लास शुरू हो जाए। Why are you taking too much time? ज्यादा समय लेते हो भाई आने में। अभी तक 10 पार्टिसिपेंट्स हैं। गुड मॉर्निंग आशीर्वाद, गुड मॉर्निंग बेटा।
सो नाउ लेट अस स्टार्ट, ठीक है ना। टाइम अब होता जा रहा है तो अब हम लोग शुरू करते हैं, आते जाएंगे, बच्चे ज्वाइन करते जाएंगे। 2 मिनट ऑलरेडी पास हो चुका है, 10:52 हो चुका है, 46 में ही हम मीटिंग ओपन कर दिए थे। सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट रोडवेज एंड नाउ let us discuss the previous class, and I think we are not discussed about the problems faced by roadways of India. Now, what are the major problems? From my side, question is, what are the major problems faced by roadways, development of roadways? Yes, major problem. Roads are not same in all way over the country, and the space is also congested. Yes, very good. थोड़ा सा वीडियो ऑन करके बोलते तो और अच्छा लगता हमको, जरा देख भी लेते, बच्चों को देखे बिना हम लोगों को भी अच्छा नहीं लगता है टीचर्स का। यस गिरीश, और बताओ अनदर प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय रोडवेज। उसके बाद हम लोग रेलवे में आ जाएंगे। और क्या प्रॉब्लम है रोडवेज का? यस गिरीश तो चला गया। आर्यन, ट्रैफिक ठीक है, वेरी गुड। Ma'am, in some areas the roads are not been constructed very well, leading to major accidents and various injuries. यस वेरी गुड। कंजेस्टेड रोड एंड मतलब उतना सिल्की वे नहीं है, इसलिए दैट क्रिएट एक्सीडेंट। वेरी गुड बेटा। और not suitable for bulkier good. Yes, most of the heavy and bulky goods of major industries are transported through railways. So that is also one of the problems faced by roadways. और भी problem है, problems of accident हो गया, congested roads हो गया, congested bridges हो गया, ठीक है ना, which leads to accident, lack of proper space, lack of 4-lane and 6-lane road throughout the country. Theft and damaging are also some of the factor. Yes, प्रियम राज लिख रहा है natural factors affect poor maintenance of road. एलिशा का है, good. और poor maintenance, narrow culverts, old bridges, ठीक है ना, ये सब हम लोग डिस्कस किए थे। old bridges, poor maintenance, narrow culverts, lack of sufficient 4 to 6-lane roads all over the country, lack of sufficient border roads throughout the countries, possibilities of accident, और उसके बाद theft and damaging, road robbery, ये भी एक problem है। So these are the major problems faced by roadways in India, ठीक है। Due to physiographic constraint, the roadways are not sufficient in undulating topography, desert area, forested area, etc. So is there any problem in roadways? Roadways में किसी को कोई problem है? These are the major problems faced by roadways. 6 categories of roadways, significance of roadways, significance of border roads. Border roads भी discuss हो चुका था। So is there any confusion in roadways? अगर नहीं है तो हम लोग रेलवे शुरू करेंगे। बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं फिर लीव कर रहे हैं, क्यों भाई? शिव रंजन कुमार, जरा सा अपना वीडियो ऑन करना तो बेटा। शिव रंजन, शिव रंजन, आवाज सुनाई पड़ रही है बेटा? शिव रंजन, थोड़ा वीडियो ऑन करना तो बेटा। यस शिवरंजन, आर यू हियरिंग माई वॉइस? आ तो गए हो लेकिन कहाँ चले गए हो? आवाज सुन नहीं रहा है, बस ये प्रॉब्लम है हमारा ऑनलाइन क्लासेस का। वी आर ट्राइंग टू अपडेट आवर सेल्फ। यस शिवरंजन, जरा सा बेटा अपना वीडियो ऑन करो, बहुत देर बाद रिप्लाई किया। एक बार करो तो वीडियो ऑन हो जाएगा, सब सही।
ऐसा एक जगह का प्रॉब्लम नहीं है बेटा, हर जगह का है, लेकिन ट्राई करोगे तो हो ही जाएगा। बहुत बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। सो नाउ लेट अस स्टार्ट विथ रेलवे। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? से यस और नो। रोडवेज में किसी को और कुछ पूछना है? नो मैम। ओके, तो हम लोग रेलवेज में आते हैं, ठीक है। नाउ Indian Railways. Indian Railway is the largest public undertaking and one of the largest network of railways in the world. Indian Railway का ये खास विशेषता है, it is one of the largest in the world. Development जो बाकी जगहों में जो डेवलपमेंट हुआ है रेलवे का, सो डेवलप्ड नेशंस में जो डेवलपमेंट हुआ है उसी तरह का डेवलपमेंट हमारे यहाँ भी हुआ है। इंडियन रेलवे इज वन ऑफ द लार्जेस्ट रेलवे network of railway in the world. Indian Railway has a network of about 7,137 stations. Means it covers 7,137 stations and spread over a route length of, कितने एरिया में स्प्रेड किया है? 66,687 किलोमीटर लेंथ में ये स्प्रेड किया है, with a fleet of 11,122 locomotives. इंडियन रेलवे में पैसेंजर व्हीकल्स के साथ साथ, पैसेंजर बॉगीज के साथ साथ हमारा गुड्स ट्रेन का भी डेवलपमेंट हुआ है, और जिसकी कैपेसिटी है 11,000, जो 11,122 लोकोमोटिव्स हैं, विच इज यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन। 54,506 पैसेंजर सर्विस व्हीकल्स भी हमारे यहाँ अवेलेबल है, जो कि पैसेंजर को ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है फ्रॉम वन रीजन टू another. 6,899 other coach vehicles and 2,51,256 wagons. Wagons means bogie. Bogie का नाम सुना है ना? इतने सारे bogies हमारे यहाँ हैं, करीब करीब 2,51,256, 2,51,256 wagons हैं हमारे यहाँ आपका पूरा रेलवे में, जो कि पैसेंजर को कंफर्ट प्रोवाइड करता है, पैसेंजर को कंफर्टेबल जर्नी प्रोवाइड करता है, एंड हेल्पफुल इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वन रीजन टू अनदर रीजन। ठीक है, इसके अलावा, एंड दिस डाटा इज बेस्ड ऑन द 2016 रिकॉर्ड, 2016 का रिकॉर्ड के आधार पर हम आपको बता रहे हैं कि वी आर हैविंग 7,137 स्टेशंस, रेलवे स्टेशंस, which provide a route length of about 66,687 kilometer, with a fleet of, with a goods vehicles of 11,122 locomotives, which is used for transporting goods from one region to another, and 2,51,256 wagons, which are used for transporting passenger from one place to another place, 54,506 passenger services. And all these data are based on the record of 2016. So in this way, railways development are going throughout the country, and day by day, we can see that more and more railway services are introduced in our country for providing more and more comforts in our life. So now my question is, do you know what type of gauges are used for development of railways? Which type of gauge is uniformly used throughout the country? Anyone? Broad gauge. Broad gauge. What is the distance of broad gauge? What is broad gauge? क्या है? Broad gauge क्या शो करता है बेटा? Distance between the two tracks is 1.676 meters. हाँ, मतलब कि करीब करीब 1.25 मीटर का डिस्टेंस होता है बिटवीन टू ट्रैक्स। Why broad gauge are mostly used uniformly developed throughout the country? Is there any reason behind the development of broad gauge? कोई बताएगा कि ब्रॉड गेज का यूज हम लोग क्यों करते हैं ज्यादा से ज्यादा? क्यों रेलवे हमारा ब्रॉड गेज का यूज करता है ज्यादा? चलिए हम बता देते हैं।
जो आपका अभी हम लोग देख रहे हैं कि डे बाय डे आवर गवर्नमेंट इंट्रोड्यूसेस मेनी फास्ट ट्रेन्स। तो फास्ट ट्रेन्स को रन करना मीटर गेज और नैरो गेज में पॉसिबल नहीं है, बहुत ज्यादा जर्किंग होता है, बहुत ज्यादा हिलता है। ठीक है, ब्रॉड गेज में हम हाई स्पीड को कवर कर सकते हैं, हाई स्पीड में ट्रेन को। यस आर्यन राज सही है बेटा, ये थोड़ा सेफ होता है स्पीडी ट्रेन के लिए, जो कि काफी स्पीड में चलाई जाती है, जो एक वन रीजन टू अनदर रीजन को कनेक्ट करती है। दूसरा, ज्यादा से ज्यादा वैगन्स का लोड्स और कंफर्ट हम इसमें प्रोवाइड कर सकते हैं विदाउट एनी जर्किंग। जर्किंग थोड़ा कम होता है और आपको स्पीडी और फास्ट मूवमेंट और फॉर कंफर्टेबल जर्नी दैट इज यूज्ड। मीटर गेज में क्या होता है कि डिस्टेंस जो होता है आपका दो ट्रैक के बीच में वो आपका 1 मीटर होता है, और ये जो है वो छोटे एरिया को तो कनेक्ट कर सकता है, शॉर्ट डिस्टेंसेस को तो कनेक्ट कर सकता है। इसमें बॉगी का साइज भी छोटा छोटा है, जो उतना ज्यादा कंफर्टेबल और स्लीपर क्लास और फर्स्ट क्लास ये सब उतना प्रोवाइड नहीं कर पाता, और थोड़ा सा जर्किंग भी ज्यादा होता है। एंड नैरो गेज जहाँ पे दो ट्रैक के बीच का डिस्टेंस जो होता है लेस देन 1 मीटर होता है, जैसे 0.67 मीटर होता है, और वो आपका ज्यादातर माउंटेनियस एरिया में है। बट नाउअडेज फॉर प्रोवाइडिंग बेटर सर्विसेज टू पीपल, government introduced uni-gauge system. Uni-gauge system means government introduced uniform gauge, that is broad gauge, throughout the country for providing safe and comfortable journey to the people. ठीक है? Now, railways are considered as one of the most comfortable means of transportation for long distances. ठीक है, अभी हम अगर क्वेश्चन आता है, आप रोडवेज को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और उसमें हम लोग क्वेश्चन डिस्कस किए थे हाउ रोडवेज स्कोर ओवर रेलवेज। अगर इसी के रिवर्स में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ रेलवेज स्कोर ओवर रेलवेज ओवर रोडवेज, देन हाउ कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन? कैसे दोगे आंसर, क्या लिखोगे, क्या पॉइंट है, इन व्हाट मैनर? यहाँ पे अगर क्वेश्चन आता है हाउ रेलवेज स्कोर ओवर रोडवेज, तो हमको बताना होगा कि हाउ रेलवेज आर मोर एडवांटेजियस देन रोडवेज। तो क्या आप लिखेंगे? हाउ रेलवेज आर मोर इंपॉर्टेंट देन रोडवेज। अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाएगा तो क्या लिखोगे? कोई बताओ, सृष्टि एक पॉइंट बताओ। Yes, ma'am. हाउ रेलवेज स्कोर ओवर रोडवेज। Ma'am, railways are fastest mode of transportation. They One of the connect us from आर्यन सिंह आपका सही different है, states. ठीक है। सृष्टि कश्यप अपना वीडियो ऑन करो एक बार बेटा। यस यस यस, प्रियम राज योर आंसर इज आल्सो राइट। यस सृष्टि, Yes, ma'am. हाँ बेटा एक बार फिर से बताओ, हाउ रेलवेज स्कोर ओवर रोडवेज। Railways are fastest mode of transportation and they One of- connect us from different states. डिफरेंट प्लेसेस तो आपका रोडवेज भी कनेक्ट करता है। डिफरेंट Ma'am, states. स्पेस, डिफरेंट स्पेस मीन्स व्हाट? Ma'am, states. स्पेस सुनाई पड़ रहा है, स्पेस बोल रही हो ना, तो डिफरेंट स्पेस से क्या मतलब No, है ma'am, तुम्हारा? state. स्पीड। Ma'am, state. शहर, city, state. चैट बॉक्स में लिखो। ओके, अभी हम लोग का बहुत सारा पॉइंट्स है विच शोज दैट रेलवेज स्कोर ओवर रोडवेज। ठीक है, अभी आप में से कोई शिवम कुमार हमेशा ट्रैक से बाहर जाते हो, अभी बताओ शिवम कुमार। अच्छा स्टेट्स बोल रही हो, ज्यादा स्टेट को कवर करता है, चलो वो तो रोडवेज भी करता है। चलो नेक्स्ट। ओके थैंक यू सृष्टि। नेक्स्ट शिवम कुमार, हाँ यस अनुराग सही है। शिवम कुमार,
जरा अपना वीडियो ओपन करो शिवम ऑफ 10F। अभिजीत, यस, हाँ ठीक है अभिजीत, गुड बेटा, सभी बच्चे आ रहे हैं। हाँ वेरी गुड प्रियम, यस योर आंसर इज ऑल्सो करेक्ट। शिवम आवाज सुनाई पड़ रही है? बाकी बच्चे भी चैट बॉक्स में लिख रहे हैं, शिवम का कोई चैट बॉक्स में भी मैसेज नहीं दिख रहा है। शिवम कुमार, रितिका, यस वेरी गुड, लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। सबसे पहले आपको यही लिखना है, जो आपका रेलवेज जो है that is the largest public sector undertaking. And when we talk public sector undertaking, what does it mean, Aryan? अगर हम पब्लिक सेक्टर बोलते हैं, what does it mean? क्या मतलब है इसका पब्लिक सेक्टर? Yes, In public sector, the assets are owned and controlled by the government. very good. It is under the control. It is under the control of government. So railway is one of the mode of transportation that is carried by government completely. अभी याद आ रहा है? तुम्हारा ऑडियो डिस्कनेक्टेड क्यों हो गया है? इतने देर बाद शिवम का रिस्पॉन्स आया। तो रेलवे जो है लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। जितना भी कंस्ट्रक्शन होता है और जो कुछ भी होता है दैट इज गवर्न्ड बाय, दैट इज मैनेज्ड बाय गवर्नमेंट, ठीक है। और रेलवे जो है उसी तरह का लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। इट स्कोर ओवर, हाँ यस वेरी गुड सान्या कुमारी। सान्या ऑफ विच सेक्शन? किस सेक्शन की सान्या है? 10F की है या 10E की है सान्या? 10F। और 10E की सान्या को मैसेज कोई नहीं दिया ज्वाइन करने के लिए? ओके गुड बेटा। नाउ अब ध्यान से सुनोगे और उसके बाद इंपॉर्टेंस और हाउ रेलवेज स्कोर ओवर रोडवेज ये आप लिख करके असाइनमेंट में डालेंगे। ध्यान से अभी सुनो। हाउ रेलवेज स्कोर ओवर रोडवेज। नंबर 1, it is one of the fastest means of transportation for carrying goods and passenger from one region to another. It is largest public undertaking, means all construction maintenance work is done by गवर्नमेंट। हालांकि अभी का नया समय में मॉडर्न टाइम में क्या हो गया, जो रेलवे में जो कई सारी फैसिलिटीज है उसका कॉन्ट्रैक्ट निकलता है गवर्नमेंट के द्वारा, और ये आपके बेनिफिट के लिए, ये जनरल पीपल के बेनिफिट के लिए है कि जो ज्यादा अच्छा खाना प्रोवाइड करेगा, जो ज्यादा सर्विसेज प्रोवाइड करेगा उसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा, ताकि डे बाय डे पब्लिक को और ज्यादा फैसिलिटेट किया जा सके। So this is another important significance of railways. It facilitates people by providing pantry system, and by providing, nowadays it also provide many other day-to-day amenities even in railway sector also. जब हम traveling करते हैं तो वहाँ पे कई तरह का सुविधा हमको दिया जाता है, जैसे कि टॉयलेट जाना है, जैसे कि आपका लॉन्ग डिस्टेंस में स्लीपर क्लास भी है, उसमें भी कई सारा रेंज है, जितना ज्यादा कंफर्ट हमको मिल सके। खाना भी हमको अवेलेबल हो जाता है, चाय कॉफी भी अवेलेबल हो जाता है। आजकल तो आपका पेपर और भी डे टू डे एमिनिटीज है, ऑल इज अवेलेबल इन रेलवे। सो इट प्रोवाइड very much comfortable journey to the people. It is very comfortable for traveling long distances. जब हम लंबी दूरी का यात्रा करते हैं तो ये हमारे घर जैसा ही हमको सर्विसेज प्रोवाइड करता है और कंफर्टेबल होता है, जो कि हम रोडवेज में वैसा फैसिलिटीज हमको नहीं मिल पाता है। और क्या है भाई? इट इज हेल्पफुल इन ट्रांसपोर्टिंग लार्ज नंबर ऑफ पीपल and large amount of goods from one region to another. Yes Anurag, your answer is also correct, your point is also correct. और क्या होता है, रेलवे एक ऐसा सेक्टर है, जैसा कि अभी अनुराग भी लिखा, जो कि लार्ज स्केल जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है लोगों को। सो इन दिस वे इट इज ऑल्सो हेल्पफुल इन प्रोवाइडिंग जॉब
एंड रिड्यूसिंग पॉवर्टी फ्रॉम सोसाइटी। जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करके ये ज्यादा से ज्यादा हमारा इकोनॉमिक स्टेटस को, हमारे जनरल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को रेज करता है और पॉवर्टी को रिड्यूस करता है। इन दिस वे ऑल्सो इट इज इम्पॉर्टेंट। अब आ जाते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर को। मैक्सिमम हेवी इंडस्ट्रीज की जब बात करेंगे तो हेवी इंडस्ट्रीज का जो रॉ मटेरियल होता है और जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट होता है, दैट इज मोस्टली ट्रांसपोर्टेड बाय railways. By using railways, it is important for transporting heavy and bulky goods from the region of production to industrial sector and then industrial sector to marketplace. खास करके आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज में जो हम रॉ मटेरियल यूज करते हैं वो काफी हेवी और बल्की होता है, तो इसका रॉ मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने में रेलवे जो है वो ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। सो इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर ट्रांसपोर्टिंग हेवी एंड बल्की गुड्स फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, एंड इन दिस वे इट सर्व्स industrialization of nation. And you all know that with industrialization directly contribute to economic development by promoting trade and commerce, by supporting agricultural activity, by providing job opportunity, etc. So for heavy and bulky goods, railways are mostly used. With the introduction of container services in Indian Railway, now it also try to provide door-to-door service. Container service introduce करके जब हम सामान लोड करते हैं तो वो रेलवे से उतर कर रेलवे का ही व्हीकल्स को यूज करते हुए हमारे डेस्टिनेशन तक, हमारे घर तक पहुंच जाता है। तो विद द इंट्रोडक्शन ऑफ कंटेनर सर्विस इट ऑल्सो प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विस। आप जानते हैं कि इंडियन रेलवे इज वन ऑफ द लीडिंग इन द थर्ड वर्ल्ड एशियन कंट्रीज में, और इंडियन रेलवे जो है दैट started many turnkey products in developing nations also by using BOT, built, operate and transfer techniques, and in this way it also provide profit and it become profitable and contribute in national development. In this way also it score over roadways. So comfortable journey, provide many amenities, उसके बाद helpful in transporting heavy and bulky goods and promote industrialization, provide large scale job opportunity. Principal mode of transportation कहने का मतलब इंडिया में हम गुड्स और पैसेंजर दोनों की बात करें तो ये सबसे ज्यादा एरिया में फैला हुआ है, लॉन्ग डिस्टेंस को कनेक्ट करता है और ज्यादा से ज्यादा गुड्स और पैसेंजर को, जब हम पैसेंजर का संख्या देखेंगे तो ये ज्यादा से ज्यादा गुड्स और पैसेंजर को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्पफुल होता है। दैट्स व्हाई इट इज कंसीडर्ड एज प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड इट इज वन ऑफ द इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स थ्रू आउट द कंट्री। पूरे देश के डिफरेंट पार्ट को ये यूनिफाई करता है, यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। जब हम लोग रिजर्वेशन कराते हैं और रेलवे में ट्रेवलिंग करते हैं तो कभी भी ये चॉइस नहीं होता है कि सामने वाले सीट पर कौन बैठेगा, ठीक है ना। वो किसी सेक्ट, किसी रिलीजन, किसी कास्ट, कोई भी आपका जेंडर से रिलेटेड वो कर सकता है ट्रेवल, वहां पे हमारा कोई चॉइस नहीं है। सो इन दिस वे इट एक्ट एज अ मेजर इंटीग्रेटिंग फोर्स। जब हमारा इंडिपेंडेंस मूवमेंट, नेशनलिस्ट मूवमेंट चल रहा था उस समय भी ये पूरे भारतवर्ष को कनेक्ट करने में, हालांकि उस समय डेवलपमेंट उतना नहीं था, फिर भी जो भी डेवलपमेंट था उसको भी कनेक्ट करने में ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, लोगों को कनेक्ट करने में। तो लार्जेस्ट क्या कहते हैं, नेशनल इंटीग्रेटिंग फोर्स के रूप में हम रेलवे को का नाम हम ले सकते हैं, ठीक है। इट इज प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बिकॉज इट कैरी लार्ज नंबर ऑफ पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन, ओके, with all facility, almost all facility as we avail in our day-to-day life, which is not available in road services, ठीक है ना। That's why it is, इसको प्रिंसिपल कहने का मतलब है कि मुख्य रूप से इसको लोग यूज करते हैं। चीपेस्ट भी है, वन ऑफ द चीपेस्ट भी है,
कंफर्टेबल फॉर लॉन्ग जर्नी भी है, लॉन्गेस्ट ट्रेवलिंग के लिए हम लोग रोडवेज को प्रेफर नहीं करते हैं, ज्यादातर रेलवेज को ही प्रेफर करते हैं। मान लो किसी वजह से कहीं रुक भी गया तो रेलवे हमको और भी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है, कि जैसे मान लो किसी कारण से डिले हुआ है तो खाना है, जो भी है वो हमारा उसका पेंट्री सिस्टम और गवर्नमेंट की तरफ से कई सारा हेल्प हमको अवेलेबल हो सकता है रेलवे में। ठीक है, तो लार्ज नंबर ऑफ पीपल को, लार्ज नंबर ऑफ गुड्स को एक बार में लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रांसपोर्ट करने में ये हेल्पफुल है with all facilities. That's why it is called principal mode of transportation, and it is one of the integrating factor. It unify the whole nation under single unit without any discrimination. कोई discrimination नहीं। हम रोडवेज में कर सकते हैं कि भाई हम अपना प्राइवेट ये करें, हम उसके बगल का सीट नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे, लेकिन रेलवे में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए इसको कहा गया है कंफर्टेबल लार्जेस्ट नेटवर्क। और आप जानते हैं कि हमारा कई सारा रेलवे जोन भी है जिसका डेवलपमेंट हुआ है, ईस्टर्न रेलवे, वेस्टर्न रेलवे, नदर्न रेलवे, सेंट्रल रेलवे, तो हर एरिया का डेवलपमेंट हुआ है। और ट्राई किया जा रहा है कि हम कुछ वैसे अनडुलेटिंग टोपोग्राफी में भी, भले ही थोड़ा सा उसमें इन्वेस्टमेंट हो रहा है, लेकिन शुरू किया जा रहा है कि उस एरिया को भी रेलवे से कनेक्ट कर सकें। अब जैसे कि पहले नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में रेलवे कम था, लेकिन अब धीरे धीरे उस एरिया में भी डेवलप हो रहा है, और डे बाय डे न्यू टेक्निक्स, अब जैसे कि मेट्रो रेलवे विद इन सिटीज ऑल्सो, बाय डेवलपिंग मेट्रो रेलवेज वी प्रोवाइड चीपर सर्विसेज विदाउट एनी डिले। आजकल देखते हो ना कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज वगैरह में क्या होता है, जाम का प्रॉब्लम कॉमन है ना, हर जगह जाम हो जाता है। वैसे स्थिति में मेट्रोपॉलिटन सिटीज में मेट्रो रेलवेज जो है वो आपको कंफर्टेबल, फास्ट और विदाउट एनी डिले हमको डेस्टिनेशन तक ट्रांसपोर्ट करता है, टाइम को सेव करता है और पहुंचा देता है। तो मेट्रो रेलवे का भी डेवलपमेंट हो रहा है। आजकल तो बुलेट ट्रेन भी हैं और कई सारे न्यू ट्रेन्स भी इंट्रोड्यूस किए गए हैं जो कि दूसरे से ज्यादा फास्ट है और ज्यादा कंफर्टेबल है। ठीक है ना, आजकल चेयर कार वाला भी कई सारा ट्रेन है हमारा। इवन तीर्थ यात्रा के लिए भी हम लोग मतलब स्पेशल ट्रेन चलाते हैं। जब हमारा वेकेशन होता है तो समर स्पेशल ट्रेन चलाते हैं, ट्रेन की संख्या बढ़ जाती है। जब वैसे ही एग्जाम का सीजन होता है उस समय कुछ फैसिलिटी गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है। तो टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग टू सिचुएशन इसमें इम्प्रूवमेंट किया जा रहा है। और जब से इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है, इट इज वन ऑफ द इको फ्रेंडली मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, पॉल्यूशन फ्री मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जो कि रोड ट्रांसपोर्ट में उतना नहीं है, पॉल्यूशन क्रिएट होता है, लेकिन इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ रेलवे के बाद ये ज्यादातर पॉल्यूशन फ्री मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को प्रमोट करता है। ठीक है, सो इज देयर एनी कंफ्यूजन इन द क्वेश्चंस हाउ रेलवेज स्कोर ओवर रोडवेज? किसी को कोई दिक्कत है इसमें? हो जाएगा, लिखोगे तुम लोग इसको? यस, एनी कंफ्यूजन? से यस और नो। तो No, हम लोग ma'am. तो अब एक बार डील करते हैं, व्हाट आर द मेजर प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय इंडियन रेलवे। एडवांटेजेस आएगा, कितना ये है, कैसे, और उसके बाद आता है आपका प्रॉब्लम्स। क्या प्रॉब्लम है? हर क्षेत्र का डेवलपमेंट हो रहा है। रिसेंटली कोंकण रेलवे डेवलप करके हम इवन कोस्टल एरियाज में भी रेल ट्रांसपोर्ट को प्रमोट कर रहे हैं। आपका बहुत सारा जो जम्मू एंड कश्मीर के रीजन में भी पहले, अभी से 10 साल पहले का जब डाटा देखोगे और आज का डाटा देखोगे तो कई सारा इम्प्रूवमेंट हुआ है। कई सारा ट्रेन रूट से उसको कनेक्ट किया गया है, जम्मू एंड कश्मीर को भी। तो रेलवेज में डे बाय डे इम्प्रूवमेंट हो रहा है, और ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को, पैसेंजर को हेल्प कर सके। नाउ द क्वेश्चन इज, नेक्स्ट पार्ट ऑफ इंडियन रेलवे इज व्हाट आर द बेसिक प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय इंडियन रेलवेज? हाँ, यस अभिजीत, करेक्ट बेटा। मेनी पैसेंजर ट्रेवल विदाउट टिकट। सान्या कुमारी भी लिख रही है मेनी पैसेंजर ट्रेवलिंग विदाउट टिकट। आज प्रिया से बात नहीं हुई। प्रिया, यस प्रिया। Yes, ma'am. हाँ, व्हाट आर द मेजर प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय इंडियन रेलवे? अगर पॉसिबल है तो वीडियो ऑन करके बताओ बेटा प्रिया। Yes, ma'am.
Ma'am, railways cannot be developed in undulating topographic regions like mountains, desert, Yes. etc. Yes, this is one of the major problems faced by Indian Railway. It is difficult to construct railways in undulating topography like mountainous area, rockier surface, deserted areas, etc. So it is one of the major problems. Thank you, Priya. Yes, Alicia. Alicia, now you open your video, beta. आज तुमसे भी मुलाकात नहीं हुई है वीडियो के थ्रू. एलिशा अपना वीडियो ओपन करो और बताओ एक और प्रॉब्लम. अलीशा कुमारी, प्रियम राज, यस. हाँ ठीक है, मतलब लैक ऑफ प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज अक्रॉस ब्रिजेस. यस एलिशा. हाँ बेटा. large number of river requiring construction of bridges. River requiring construction of bridges so that railway can use in this area also, है ना. Bridges अगर अच्छा होगा तो उसके ऊपर रेलवे ट्रैक लगाकर हम वहां पर से भी रेलवे लाइंस डेवलप कर सकते हैं. यस अलीशा, वेरी गुड बेटा, थैंक यू. और कोई बताओ प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय इंडियन रेलवे. आर्यन राज, चलो वीडियो ओपन करो. आज आर्यन राज से भी नहीं मिले. समटाइम्स ट्रेन आर नॉट ऑन टाइम. यस, लेट ट्रेवलिंग है ना, लेट अराइवल, लेट डिपार्चर. आर्यन राज, अभिजीत, पीपल स्टॉप द. यस, unnecessary chain pulling is also one of the problems of Indian Railways. हम क्लास में जब पढ़ा रहे थे तो आपको बताए थे कि कैसे while traveling from बक्सर to पटना हम लोग देखे थे कि आरा में कैसे चेन पुलिंग करके, और कोई दामाद जी आ रहे थे उनके लिए चेन पुलिंग हुआ, और जब तक वो चढ़ नहीं गए तब तक ट्रेन रुकी रही. यस, मेनी पैसेंजर ट्रेवलिंग विदाउट टिकट हो चुका है. और कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ रेलवेज आर कंपैरेटिवली हायर than other mode of transportation, especially from roadways. Needs require construction of bridges across roads. Rail accidents are also problem. Theft and damaging, train robbery is also problem. और sometimes जो terrorist activities हो जाता है वो भी एक प्रॉब्लम है इंडियन रेलवे का. क्या हो गया? आर्यन सिंह अभी आ रहा है. कौन सा आर्यन सिंह है ये? ठीक है, तो एक बार हम लोग इसको एक जगह इकट्ठा कर ले रहे हैं. प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय इंडियन रेलवे. सबसे पहले द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ इंडियन रेलवेज आर comparatively higher than other mode of transportation. Its development is restricted in undulating topography, rockier surface, deserted areas, etc. वहां पे आपका रोड नेटवर्क ज्यादा है. It provide comfortable journey, but sometimes due to unnecessary chain pulling, ठीक है ना, problems of delay are common in railways. Late arrival and late departure of railway schedule, ये भी एक problems है. और आजकल according to passenger robbery case is also, yes, one of the problem faced by Indian Railway. और according to the demand of people, जितना डेवलपमेंट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन उतना डेवलपमेंट अभी भी नहीं है. इट रिक्वायर्स मोर एंड मोर डेवलपमेंट. इट रिक्वायर्स डेवलपमेंट in bordering areas also in a sufficient way with all facilities.